Good morning, student. Welcome back in this class. I hope you are healthy and safe at your home. This is the class 9 subject social science, and today we are going to discuss chapter number 3 of history, and the topic name is Nazism and the rise of Hitler. This is the lecture second. Student, firstly we will recapitulate previous lecture. And student, in previous lecture we have discussed about the Nazism. Nazism was the structure, ideas of the world politics, and it was the ideology of Adolf Hitler, and Adolf Hitler was the emperor of Germany. And you know, the First World War had occurred in two European alliances such as Central Power and Allied Power. Central Power countries included Germany, Austria and Turkey. And the Allied Power country included Germany, Russia, France. But in First World War, Germany defeated and the Central Power in November 1918. After the loss of power in First World War, the condition of Germany was very bad. Okay, so student, let's start. And firstly, today we will cover some topic. Firstly, we will discuss about the political radicalism and economic crisis. We will discuss about the political changes after the First World War and the economic condition of Germany after the First World War. And the year of depression. Depression means when the wages are very low and the expenses are very high. Condition of depression. And after the defeated in First World War, Germany condition were very bad. And after that we will solve some question. That question I have assigned in previous lecture, and in last I will give some question in your homework. So student, let's start. Firstly, we will discuss about political radicalism and economic crisis. Student, in last lecture, in last chapter, socialism in Europe and the Russian Revolution. Radicalism means when some member wanted to change the society. Radical means change in the society. And the political change after the First World War in Germany, and economic crisis means the economic condition were very bad after the First World War in Germany. So student, first, political radicalization was only increased by the economic crisis of 1923 due to defeated in the First World War. The condition of Germany was very bad in 1923. Then some changed in the economics, in the political system, and it was called political radicalization. This was the time when the Spartist League began to rise. And in that time, in 1923, a new league began to rise. Political radicalization means some changes in the political system due to the economic crisis of 1923. बेटा, इसमें जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद पॉलिटिकल कंडीशन में बहुत क्या चेंजेस आए. इकॉनमी डिप्रेशन होने के बाद, इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से जर्मनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इन 1923. और वहाँ पे एक न्यू लीग ने बनना स्टार्ट हुआ. न्यू लीग यानी कि एक नई यूनियन ने बनना स्टार्ट किया. उस न्यू लीग का नाम था स्पार्टिस्ट लीग. स्पार्टिस्ट लीग, वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी यूनियन बनाई, उस यूनियन को नाम दिया स्पार्टिस्ट, जिनका मेन पर्पस था जर्मनी में अपनी पावर को एनहांस करना. एंड द स्पार्टिस्ट लीग वाज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया. Student, in last chapter we have discussed about the Russian Revolution, and Russian Revolution had occurred in 1917,
and all power in the hands of Bolshevik. And the same part in Germany, a new league name was Spartist. जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने, बोल्शेविक पार्टी ने अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म की थी अक्टूबर 1917 में, तो वैसे ही उसी अकॉर्डिंग ही जर्मनी में भी एक नई यूनियन बनाई गई. उस यूनियन का नाम था स्पार्टिस्ट. क्योंकि रशियन के रेवोल्यूशन के बाद ही जर्मनी में भी क्या हुए थे, काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे. तो उसी के बिहाफ पे जर्मनी में भी एक नई लीग या नई यूनियन का नाम रखा गया स्पार्टिस्ट. And the people of Berlin in Germany, the city of Berlin people demanded for Soviet-style governments, same as the style of Bolshevik Revolution. In the people of Germany, they were demanded for Soviet-style government. They wanted to change the society and they wanted to डिमांडेड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स. वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट बनाए जाए वो ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाया जाए, उनके मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या है गवर्नमेंट बनाया जाए, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है कंट्री को रन किया जाए. एंड द वाइमर रिपब्लिक प्रेस द अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिस्ट लीग. बट वाइमर रिपब्लिक, वाइमर जर्मनी में एक सिटी का नाम है जहाँ पे क्या है पार्लियामेंट बनाई थी, और पार्लियामेंट का नाम क्या है राइक्सटैग है. राइक्सटैग पार्लियामेंट है जर्मनी की. तो वाइमर रिपब्लिक प्रेस द अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिस्ट लीग विद द हेल्प ऑफ द वार ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री कॉर्प्स. फ्री कॉर्प्स क्या है? द ग्रुप ऑफ आर्मी पीपल, द ग्रुप ऑफ सोल्जर, दे फॉर्म्ड ए ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम वाज फ्री कॉर्प्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी वहाँ पे आर्मी और जो भी सोल्जर रह गए थे, यानी कि जो भी वहाँ मारे नहीं गए थे, जो भी वहाँ पे आर्मी या जो भी सोल्जर बचे हुए थे, उनके द्वारा जो ग्रुप के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उनका नाम, उनको ग्रुप का नाम रखा गया फ्री कॉर्प्स. तो वाइमर रिपब्लिक ने स्पार्टिस्ट लीग को मूव करने के लिए, स्पार्टिस्ट लीग को हटाने के लिए फ्री कॉर्प के साथ एक क्या किया वॉर किया, जिसकी वजह से वहाँ स्पार्टिस्ट लीग को क्या किया गया हटाया गया. क्योंकि वाइमर रिपब्लिक उनको स्पार्टिस्ट लीग को मोटिवेट करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे सोवियत स्टाइल पे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाए. इसी वजह से वाइमर रिपब्लिक ने अपनी कंट्री में आर्मी के ग्रुप को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्री कॉर्प्स. एंड आफ्टर दैट द स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. According to the Bolshevik party, because Bolshevik party they changed their party name, their party name was Communist Party. And so in Germany, Spartist, they formed their own party and the party name was Communist Party of Germany. And Germany had fought the war largely on loans and had to pay war repression in gold. This resulted in depletion of gold reserve when resources were insufficient. अब जर्मनी ड्यू टू लॉस इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन. जो जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड में जो भी वॉर किए थे उसमें वो हारने के बाद वो ज़्यादातर जो वॉर में जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो लोन लेके क्या कर रहा था फुलफिल कर रहा था. और इसी वजह से लोन की फुल पेमेंट करने के लिए, उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए उसने क्या कर दिया, अपना गोल्ड को ही क्या कर दिया ऐसे वहाँ पे सिक्योरिटी की तरह वहाँ पे इनको डिपॉजिट किया, और उसने गोल्ड को भी क्या करना उनको देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट डिप्लेशन गोल्ड, जिसकी वजह से जर्मनी में गोल्ड के रिजर्व में क्या हो गया काफ़ी डिप्लेशन आया. उनके पास जो गोल्ड रिजर्व थे वो काफ़ी कम रह गए थे, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज थे वो इनसफिशेंट थे, क्योंकि उसने लोन ले रखा था. जर्मनी लोन के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा था, वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, और वॉर जब उसने अपने पैसों की पेमेंट नहीं की तो उसके गोल्ड रिजर्व भी क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे. क्योंकि उसके पास जब जर्मनी के पास काफ़ी कम रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज वो इनसफिशेंट थे अपने लोन को पेमेंट करने के लिए, इसलिए जर्मनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी. इसी वजह से इकोनॉमी जो जर्मनी में जो क्या गया था इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था due to the First World War. And when Germany refused to pay in 1923 due to the bad condition of Germany, they refused to pay the loan in 1923. France occupied Germany industrial area. As a result, France occupied, because France belonged to the Allied group, and they controlled the Germany industrial area Ruhr, which was rich in coal. तो फ्रांस ने
फ्रांस ने जर्मनी का एक एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया रूह्ड, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता था, तो इसी वजह से उसको अपने एरिया में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि जो वो अपना जो लोन उसने पे नहीं किया उसके अकॉर्डिंग फ्रांस क्या कर रहा है, उसने इंडस्ट्रियल एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड जर्मनी रिटेल्टेड द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय प्रिंटिंग पेपर करेंसी, और जर्मनी ने अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए उसने पेपर करेंसीज को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। हावेवर excess circulation of printed currency resulting in a sharp fall of German mark, due to which price of goods increased. जर्मन मार्क, जैसे हमारी कंट्री में जो करेंसी वो रुपीज़ है, तो वैसे ही जर्मन में जो करेंसी उसका नाम है, उसको करेंसी का है मार्क। तो उसने क्या है, अपने इकोनॉमी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ बहुत सारी करेंसी को प्रिंट आउट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा करेंसी होने की वजह से करेंसी ज़्यादा होगी, और करेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस थे, जो सभी गुड्स के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एंड दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। और जब हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स when the prices of goods were very high is called hyperinflation। और जैसे कि वहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा मार्क होने पर ज़्यादा, यानी कि करेंसी ज़्यादा प्रिंट आउट होने की वजह से वहाँ की जो लोकल जो मार्क की वैल्यू थी काफ़ी कम हो गई थी। मार्क की वैल्यू कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ जर्मनी में पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, कम हो गई थी। एंड दिस, और वहाँ पे क्या था, इन अप्रैल इन यूएस डॉलर वाज इक्वल, जो यूएस डॉलर था वो 24,000 के इक्वल था, बट इन जुलाई ए वैल्यू $1 इज इक्वल टू 3,53,000, एंड इन अगस्त 4,06,21,000, एंड आफ्टर दैट द करेंसी ऑफ जर्मनी, द मार्क वैल्यू ऑफ जर्मनी वाज वेरी low and its condition was called hyperinflation in Germany। ज़्यादा मार्केट में जब ज़्यादा करेंसी हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो वहाँ जो गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्राइस क्या हो गए थे, सभी चीज़ों के बढ़ गए थे। इसी वजह से वहाँ पे जो जर्मनी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी। नेक्स्ट, द अमेरिकन इंट्रोड्यूस द Dewey's plan, which helped Germany to overcome the crisis of economic crisis, and the plan make change in the terms of repression of relieve the financial burden on the German student. अब the crisis came to known as a hyperinflation, but the America, अब जर्मनी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, पुअर हो गई थी, and the American intervened and bailed Germany आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूस द डेविस प्लान। अब अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की, और उसने क्या है वहाँ पे एक प्लान बनाया, उस प्लान के अकॉर्डिंग जर्मनी की उसने हेल्प की ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। उस प्लान का नाम है डेविस प्लान। इसमें क्या करता है, अमेरिका जर्मनी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था। दिस प्लान मेक टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ रिप्रेशन टू रिलीव द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन, कि ताकि इसकी वजह से जर्मन पीपल की जो कंडीशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सकता था। तो अमेरिका ने क्या है जर्मनी के साथ हेल्प की, और उसकी क्या है उसको फाइनेंशियल में क्या करी, उसको हेल्प की, और वहाँ के जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको काफ़ी कम करने की अमेरिका ने क्या की थी, हेल्प की थी। ड्यू टू द ड्यूइस प्लान के अकॉर्डिंग अमेरिका ने जर्मन की हेल्प की थी, क्योंकि जर्मन की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद भी काफ़ी सारी जो करेंसी है उसकी वॉर में ख़त्म हो गई थी, और वहाँ पे जो गोल्ड रिजर्व था वो भी क्या हो गया था, काफ़ी कम हो गया था। इसकी वजह से जर्मन ने अपने क्या है, दे रिफ्यूज़ टू पे द टैक्सेस, दे पे देयर लोन। ओके, तो उसके बाद वहाँ पे उनकी जो रूरल एरिया था वो भी क्या है फ्रांस से कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी, और इस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की थी। नेक्स्ट बेटा, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। द ईयर ऑफ डिप्रेशन का मीन्स मंदी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रेट हाई हो जाते हैं, और क्या होते हैं गुड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं और वेजेस काफ़ी कम होते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं डिप्रेशन। देयर वॉज सम इकोनॉमी स्टेबिलिटी इन जर्मनी बिटवीन 1924 to 28। देयर वर बिकॉज ड्यू टू द हेल्प ऑफ अमेरिका द कंडीशन ऑफ जर्मनी वॉज सम स्टेबल फॉर द ईयर ऑफ
1924 to 1928। जर्मनी की हेल्प अमेरिका कर रहा था, इसकी वजह से काफ़ी क्या हुई थी, उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई थी, लेकिन जो कंडीशन थी वो काफ़ी टाइम के लिए स्टेबल नहीं रही। And in Germany, investment and industrial recovery were totally dependent on the USA because the Dewey's plan, the Germany condition, Germany investment and the industrial development dependent on the USA. After that, however, this support from USA was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. But USA was withdraw their support. When the Wall Street Exchange, it was a stock exchange. Wall Street Exchange means was stock exchange, and it was the name of world biggest stock exchange. It is located in the USA. USA का सबसे बड़ा जो stock exchange है उसका नाम है Wall Street Exchange. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वहाँ पे शेयर्स, यानी इंडस्ट्री जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं, और जो शेयर्स के रेट क्या होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूएसए में वहाँ पे रेट क्या है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश ख़त्म होने की वजह से यूएसए की कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, और यूएसए ने भी क्या कर दिया, जर्मनी की हेल्प करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसी वजह से जर्मनी की कंडीशन और भी ज़्यादा क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी, क्योंकि जो वहाँ पे अमेरिका में था, यूएसए में जो था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उसमें खुद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था। इसी वजह से यूएसए की जो इनकम थी वो क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी, इसीलिए उसने जर्मनी को सपोर्ट करने से मना कर दिया। बिटवीन 1929 to 32 द कंडीशन ऑफ जर्मनी वाज वेरी बैड, द नेशनल इनकम द यूएसए फेल बाय हाफ, एंड द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन means the low time period of the low season of economic, and the effect of this recession in the US economy were felt all over the world। और इस मंदी, इस रिसेशन का इफेक्ट यूएस के अलावा ऑल पूरे वर्ल्ड में भी हुआ, और वर्ल्ड में भी पूरी इकोनॉमी भी क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। एंड द जर्मन इकोनॉमी वॉज सेवरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी की भी इकोनॉमी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बैड इफेक्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो टोटली जो जर्मनी की इकोनॉमी वो भी किस पे डिपेंड थी, यूएसए की हेल्प पे डिपेंड थी, और यूएसए ने अपनी हेल्प क्या कर ली थी, विड्रॉ कर ली थी, वापस ले ली थी, जिसकी वजह से जर्मनी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। नेक्स्ट है बेटा, मेन इफेक्ट ऑफ द रिसेशन ऑन जर्मनी, मीन्स द मेन इफेक्ट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन on Germany. By 1932, industry production was reduced to 40%. इंडस्ट्री प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40%। 1932 में ड्यू टू द बैड इकोनॉमिक कंडीशन इंडस्ट्री प्रोडक्शन 40% कम हो गया था, क्योंकि ड्यू टू लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्कर लॉस देयर जॉब ऑन देयर वेजेस वर रिड्यूस, क्योंकि वर्कर्स की जॉब चली गई थी, उनके वेजेस काफ़ी कम हो गए थे। एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज टू 6 million, मीन 60 lakh पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन द जर्मनी। So the condition of the worker, the condition of ordinary people was very bad in Germany during the year of 1928. And after that, on the street of Germany, men start moving with placard around their neck saying willing to do any work, and the idle person they started moving with placard, they started doing some criminal work, and they wanted to willing to do any work, वो कोई भी काम करने को रेडी थे। उन्होंने अपनी गर्दन पे ऐसे एक बोर्ड लगा रखा था, willing to do any work, because they were unemployed, and unemployed youth played cards on simply settled street corner or desperately queued up the local employment exchange। और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काफ़ी लंबी क्यू में रहते थे, और उनके पास कोई भी वर्क नहीं था, और खाली टाइम पे वो क्या करते थे, प्लेस कार्ड यानी कि कार्ड्स के साथ खेलते थे। और क्या है, और वो क्या है, कई जो जर्मनी में काफ़ी सारे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, वो क्या है, क्रिमिनल्स भी हो गए थे, वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे, और काफ़ी लंबा स्ट्रगल करते थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, लंबी क्यू में रहते थे, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, और काफ़ी सारे क्या जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, पीजेंट थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी जर्मनी में ड्यू टू द ईयर ऑफ डिप्रेशन। आफ्टर दैट
As there were no job, the youth took to criminals activity and depression became common. Because there were no job for the people, and they were started the criminal activity and depression become common. एंड द इकोनॉमिक क्रिएटेड फियर इन द पीपल. और वहाँ पे जॉब ना होने की, जर्मनी में यूथ के लिए कोई भी जॉब ना होने की वजह से वहाँ ज़्यादातर जो यूथ थे या वर्कर थे वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे. एंड द इकॉनमी की वजह से, इकॉनमिक क्राइसिस होने की वजह से काफ़ी जो आम लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. एंड द सेविंग ऑफ द मिडिल क्लास स्पेशली ऑफ सैलरीड अनएम्प्लॉयज़ एंड पेंशनियर्स डिक्रीज व्हेन द करेंसी लॉस इट्स वैल्यू. काफ़ी सारे मिडिल क्लास ने अपनी जो सेविंग यूज़ कर रहे थे और जो पेंशनर थे, जो पेंशन पे डिपेंडेंट थे, उनकी भी क्या इनकम काफ़ी क्या हो गई थी, कम हो गई थी. क्योंकि वहाँ पे जो इनकम काफ़ी कम हो गई थी और पेंशन डिक्रीज हो गई थी, करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी क्या हो गई थी, काफ़ी कम हो गई. इसलिए जो जर्मनी की ओवरऑल इकॉनमी थी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. जो नॉर्मल पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी. जो पेंशनर थे जिनकी इनकम पेंशन पे ही डिपेंड थी, उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. जो मिडिल क्लास ने अपनी सेविंग को भी यूज़ कर लिया था, उसके पता उनके पास कोई भी इनकम का कोई भी रिसोर्सेज नहीं था. और इसी वजह से बहुत सारे यूथ पीपल थे, वर्कर्स थे, वो गलत एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो गए थे. Every member of the society was affected by the economic crisis and was filled with the fear of plotrinization. Plotrinization means the condition was very bad to become impoverished to the level of working class. जो वहाँ पे हायर क्लास के थे उनकी कंडीशन भी क्या हो गई थी, पुअर क्लास के इक्वली हो गई थी. And that they thought their life such as a worker life. ओके क्योंकि उनको भी लगता था कि उनकी लाइफ क्या होगी, एज ए वर्कर होगी. जो रिच पर्सन थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. यानी कि उनके पास भी जो भी वहाँ पे रिच पर्सन थे उनकी कंडीशन भी वर्कर लेवल के बराबर ही हो गए थे. उनको लग रहा था कि हमारी कंडीशन भी क्या है, बिल्कुल पुअर पीपल की तरह ना हो जाए. इसी वजह से जो जर्मनी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी. अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड द पावर ऑफ बार्गेनिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर. उसके बाद वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया था. और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप बनाए गए, ऑर्गेनाइज्ड बार्गेनिंग किया गया. जो भी कम से कम में काम करता था उन्हीं को इंडस्ट्री में क्या किया जाता था, काम पे लिया जाता था. इसी वजह से वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइज आए थे और ये सारे इम्पैक्ट हुए थे जर्मनी में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से जो वहाँ कंडीशन थी जर्मनी की बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. क्योंकि पहले यूएसए ने उसकी हेल्प की थी लेकिन ड्यूएस प्लान के अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में यूएसए की कंडीशन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का ख़त्म होने की वजह से यूएसए की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी और उसका इफेक्ट जर्मनी में भी हुआ था. और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था, काफ़ी और भी ज़्यादा बढ़ गया था. ऑर्गेनाइज वर्कर वो क्या करते थे, जो भी ग्रुप होता था उनके बार्गेनिंग करते थे और जो कम से कम वेजेस में काम करने के रेडी होता था उसी से क्या किया जाता था, काम कराया जाता था. नेक्स्ट है बेटा, बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस. जो बड़े बिजनेस थे उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी. पीजेंट वाज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन एग्री प्राइसेस ड्यू टू द loss in industrial activity and due to the low price of agriculture product. Peasant was very afraid. Peasant was affected by the low price of agriculture product, and women felt depressed as they could not feed up their children properly. और वहाँ के peasant कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, वर्कर्स की भी और वुमेंस की भी बहुत, वहाँ पे वीमेन की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन पुअर थी क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रॉपर क्या है, फूड नहीं प्रॉपर प्रोवाइड करा पाती, जिसकी वजह से वर्कर्स भी जो थे उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी. और इसी वजह से ओवरऑल जो जर्मनी में जो इकॉनमी का इफ़ेक्ट है वो सभी पे इक्वली रहा. बिग बिजनेसमैन में, पीजेंट्स में, वीमेंस में, वर्कर्स में, पीजेंट्स में. इसी वजह से इस एरिया को कहा जाता है द ईयर ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट, अनस्टेबिलिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक. और ऐसा क्यों हुआ, एक अलग रीज़न भी था. द अनस्टेबिलिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक. वाइमर is the palace of Germany, and in Weimar Republic means the condition, the all power in the hands of parliamentary, and it was called Reichstag. But due to the instability of Weimar Republic, the Weimar Constitution had some internal affected.
वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे इंटरनल डिफेक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रॉब्लम थी, विच मेड इज अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और ड्यू टू द unstability of constitution due to the dictatorship, many internal defect in the Weimar Republic, and it was impossible to get a majority for one single party due to proportional representation. It was impossible to form a coalition government, क्योंकि वहाँ पे हर एक जो भी गवर्नमेंट थी उनको क्या है, इक्वली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट में सभी को इक्वली क्या दिया गया था, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। वहाँ पे कोई एक पार्टी नहीं बना के बल्कि सभी पार्टी का इक्वली क्या था, प्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या जो कंडीशन थी वाइमर की वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बैड हो गई थी। सबको इक्वली दिया गया था, वहाँ पे कोई कॉलिशन गवर्नमेंट ना बना के सबको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करने का उनको मौका दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपरली रन नहीं कर पा रही थी। एंड मोर एवर आर्टिकल 48, due to the article 48 and according to the article 48 gave the president the power to impose emergency, suspend civil right and rule by decree. Rule by decree means all power in the hands of parliament, means all power according to the article 48, all power in the hands of president, and they suspend civil right, they suspend fundamental right of the citizens, and all rule by the president। यानी कि जब आर्टिकल 48 अप्लाई किया तो सारी आर्टिकल 48 होने के बाद सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, और इमरजेंसी को फॉर्म किया जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग ही सबको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिसीज फॉर्म की जाती है। और इसी वजह से ड्यू टू द इंटरनल डिफेक्टेड ऑफ वाइमर रिपब्लिक, ड्यू टू द इंटरनल डिफेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, The Weimar Republic faced 20 different cabinet in 14 years। इसी में वहाँ पे क्या हो गया कि 14 years में 14 years में 20 डिफरेंट कैबिनेट बनाएगी। वहाँ पे क्या है, अलग अलग क्या रहा, इन छोटे से टाइम पीरियड में ही वहाँ पे 20 अलग अलग क्या रहा, 14 years में अलग अलग वाइमर रिपब्लिक के अकॉर्डिंग क्या गई, डिफरेंट कैबिनेट बनाएगी। और काफ़ी कम उनकी जो एवरेज जो टाइम पीरियड था 239 ही रहता था। इसी वजह से क्या हो गया, इन 239 डेज के लिए एवरेज वो काम करते थे, यानी उनका टाइम पीरियड भी क्या था, काफ़ी कम था, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाइमर रिपब्लिक थी वो क्या आ गई थी, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। एंड 5 people lost confidence in the democratic parliament system which do not offer any solution। और इसी वजह से जब बार बार एक सिस्टम को डिसॉल्व किया जाता है, बार बार जब कोई गवर्नमेंट या पार्लियामेंट फॉर्म नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोगों जो तो वहाँ के जर्मनी के जो पीपल थे उनका क्या हो गया, कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट सिस्टम पे नहीं रहा, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई जर्मनी में कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड थी, क्योंकि जर्मनी जो भी वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इकॉनमी वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आया। पॉलिटिकल चेंज होने के बाद जर्मनी की जो कंडीशन, जर्मनी ने लोन ले रखा था, लेकिन लोन को रीपेमेंट करने के लिए उसको गोल्ड देना पड़ा, और गोल्ड भी जब उसने पे नहीं किया तो उसके इंडस्ट्रियल एरिया को उन्होंने हायर कर लिया। और उसके बाद 1929 का जो एरिया, जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा बैड था, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं था, पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, और अनस्टेबिलिटी इन वाइमर रिपब्लिक होने की वजह से मैनी पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द democratic parliamentary because the Weimar Republic did not provide any solution of any problem, because Weimar Republic followed the article of 48, and the article 48 provide the all power in the hands of the president, and the president suspended civil right and they ruled by decree। सारी जो भी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी। Today our homework solution. Question number 1. What was Nazism? Answer. It was a system introduced by Hitler which had a structure of ideas about the world and the politics. Question number 2. How was Germany defeated in World War I? Answer.
Germany made initial gains occupying France and Belgium. However, the Allies, England, France, and Russia, strengthened by the US entry in 1917, won defeated Germany in November 1918. Question number 3. What was Reichstag? And it was the German parliament formed on the basis of equal and universal votes cast by all adults, including women. And question number 4. Name the member of the Allies. Answer: England, France, and Russia. The member of the Allies. And question number 5. The Treaty of Versailles was harsh and humiliating, justifying by giving 3 terms of the treaty. Answer: by signing the peace treaty of Versailles, Germany, and Versailles is the place of France, and after the peace treaty, Germany lost its overseas colonies, 1/10 of its population and 30% of its territories, and it lost 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. And after that, the war guilt clause held Germany responsible for the war, and Germany was forced to pay 6 billion as compensation for war. And point 4, resources such as Rhineland occupied by Allied armies. Moreover, the Allied powers removed military forces from Germany to weaken in power. Okay. And next question, how Germany adopted democratic constitution? And answer is, after Germany defeated in World War I and the abdication of the emperor, a national assembly met Weimar and established a democratic constitution with the federal structure. And next, today your homework student, do following question. Question number 1. What happened when Germany refused to pay war reparation to France? Question number 2. Why the value of Germany currency mark fell? And question number 3. How Germany came into the trap of hyperinflation situation after First World War, and how were they saved? And question number 4. What was the second conditions of unemployed youth in Germany during economic crisis? What was Article 48 of Weimar Republic? And question number 6. How did the economic crisis begin in the USA? And student, all questions done in your fair notebook and revised chapter. Thank you.